تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج جو شروع، وہ ہے سورت التکاثر، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ التکاثر آ رہا ہے تو یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ بھائی جان اسم ہے، اسم عادل اسم ہے. کیسے جانا آپ لوگوں نے؟ حال شروع میں سے. الف لام ال لگا الف ہوا ہے۔ سے؟ لام چلے اب ہم تھوڑا سا ال کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں۔ اب تکاثر کا کیا مطلب ہوگا؟ ابو تکاثر، بھائی جان کثرت کرنے والے۔ ہاں، مطلب ہر چیز جس میں آپ کو نا کثرت چاہیے، لال اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو اس میں اتنا آپ لوگوں کے ذہن میں، ہم لوگوں کے ذہن میں چیز آ جاتی ہے کہ ہمیں بہت سارے پیسے چاہیے، یہ تھوڑے پیسوں سے ہمارا گزارا نہیں ہو رہا۔ اولاد ہے، اچھا ایک نہیں، ہمیں بہت سارے بچے چاہیے، ایک بیٹی آ گئی تو اب بیٹا چاہیے، بیٹا آ گیا تو اب پیر بنا لو، ایک بیٹی آ گئی تو اولاد کے لیے بھی ہم بہت زیادہ، اچھا بہت سارے پیسے آ گئے، اولاد بھی بہت ساری آ گئی، تو اب ان کو نعمتیں دینی ہیں، اب ان کو ہم نے آسائشیں دینی ہیں، تو ہر وہ آسائشوں کی ہرس میں گھس گئے ہیں ہم لوگ۔ اب اس کے پیچھے مطلب ہر چیز کی کثرت جو ہے نا وہ التکاثر کہلاتی ہے۔ لیکن اس صورت میں کس کی کثرت آ رہی ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں آگے جا کے اس کو۔ اور چلی جاؤ، اچھا یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں باہمی کثرت کی خواہش نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں، کلا سوفا تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، سما کلا سوفا تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، کل لالو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا، لا ترون الجحیم، یقیناً ضرور تم دیکھ لو گے جہنم، سما لا ترونہا، پھر یقیناً ضرور تم دیکھ لو گے اس، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے، سما لا تسألن، پھر ضرور بضرور تم پوچھے جاؤ گے، یوم دن، این النعیم، اس دن نعمتوں کے بارے، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے کون بتائے گا کہ یہ الحاکم جو ہے یہ کیا ہے؟ بھائی جان اسم ہے۔ نہ میری جان، کم آ رہا ہے اینڈ میں۔ ہاں بھائی جان یہ ضمیر لگی ہوئی ہے اس ضمیر کے ساتھ متصل۔ ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں نا، کم آ گیا نا، جیسے آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ کم آ رہا ہے، کاف کما کم، ٹھیک ہے نا؟ ضمیر آ رہی ہے تو جناب یہ تو اسم نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہوا اس میں کیا ہے کہ یہ جو کم تھی نا یہ ضمیر متصل ہے، اور جو الحاکم، ہا الہا آ رہا ہے نا، غور کرو یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، یا اتنا اتنی، کون اس میں چل رہا ہے؟ ماضی ہے، ہاں جی، ماضی، دیکھو مضارع کے عطائے یا ہے ہی نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی، جب وہ ہے ہی نہیں ہے تو پھر آپ زیر زبر پہ ہم جا ہی نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ سیدھا سیدھا ماضی ہے۔ بھائی جان یہ لفظ ہی اس طرح ہے نا، الہا ہاں، ماضی کا لفظ۔ تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے انسان، اور اس لیے تو میں جی نے بھی بھائی جان، پوچھا۔ الف نام کو دے کر انسان ہو جاتا ہے، لیکن بھائی جان یہ اس کا نہیں ہے۔ ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ تھوڑا سا، اچھا ال جو ہے نا، اب آپ نے یہاں تو یہ پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا نا، یہ گرین گرین جو ہے، اب آپ نے ال کو پتہ کیسے کرنا ہے کہ یہ اسم نہیں ہے، اس میں یہ جو ہے نا یہ حمزہ الوصل نہیں ہے نا، یہ قطعی حمزہ ہے، حمزہ الوصل ہوتا نا تو جیسے یہ دیکھو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر کیا آ جی رہا ہے؟ بھائی جان، ٹھیک ایسے ہو؟ جی بھائی جان اب سمجھ آ گئی ہے۔ ہاں، اس لیے جو نا حمزہ کو فوراً دیکھ لیا کریں کہ آتا ہے نہیں، ہوتا ہے نہیں، کہاں آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا پھر التقاصر تو ابھی ہم نے پڑھ لیا، حتیٰ کا بھی آپ کو لوگوں نے اب ڈیٹیل میں، ہم لوگ آپ لوگ ابھی دوسرے سال میں اور بھی پڑھنے جا رہے ہیں، زر تم المقابر، اب یہاں پہ آ رہا ہے یہ المقابر، قبریں جو ہے نا اسم ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا چلے آگے، اب ہم نے پڑھنا ہے نا تو میں آپ کو ایک ایک چیز اس کی ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، تھوڑا سا اس کے معنی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے یہ حفظہ ہے، یہ جو ہے نا منزہ لگ رہی ہے، نہیں منزہ یہ لگ رہی ہے سوچتے ہوئے، یہ مجھے سارا لگ رہی ہے نا؟ تو اچھا، جی بھائی جان، الحاکم، یہ لہو لب کہتے ہیں بے فضول سی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا بس لیکن مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو عربی میں لہو لب کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں الحاکم،
लेकिन बेफजूल से एक्टिविटीज, जैसे मोबाइल आपका कुछ नहीं मिल रहा ना करने को, ये मोबाइल उठा लिया, देखते हैं ऐसे रील्स देखते जाओ उसको ऐसे, कभी एक ऐप से कभी दूसरी ऐप से, तो वो हम कहेंगे कि ये लहूलुहाब है, बेफायदा किस्म की एक्टिविटी। ठीक है ना। अल्तकासर, कसरत। हत्ता, हत्तल मकान, हत्ता के हत्तल वसी, ये उर्दू के मतलब है सारे। जर तुम, जियारत होती है, जायरीन भी होती है और मजार भी होते हैं। ठीक है ना। जर तुम। अल मुकाबिल, कब्र, कब्रिस्तान। तालमूना, देखो यहाँ पे ऊना हटाई जाए तो ये तालीम बन रहा है ना, तालामा। ठीक है ना। तो अब ठीक है जी हमने क्या जान। किया, इसको हमने नून को बढ़ाया, तो फिर इसका मतलब है कि ये जमा का सीगा आ रहा है। आईनी नहीं आ रहा, ऊना आ रहा है, तो ये जमा का सीगा। अब ये देखें, अल यकीनी, अल यकाइनी, यकीनन, यकीनी। और ये क्या है, ला तरुन्ना, रोयत हलाल। समझ आ गई। ये देखने का मतलब होता है इसका, ऊना को हटा दें अगर साइड पे करके, अब इसका मतलब ढूंढने की कोशिश करेंगे आप, तारो, ये जो है ये, इसका मतलब होता है देखना। अब ला यहाँ पे क्यों आया वो मैं आपको आगे बताती हूँ। एन, एनी मुशाहिदा। ला तसल्लुना, सवाल करना। अब ये देखें इसको, लुना को हट, ये नून शकीला है, ताकीद के लिए आ रहा है, इसको फिलहाल साइड पे करते हैं लाम को, तो फिर तुस अल बचता है। तो ये किससे होता है, सवाल करना। तो ये जो एक्स्ट्रा नीले नीले आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये नून शकीला है और ये लामे ताकीद है। अब यौम, ठीक है। अब यहाँ पे यौम जो है ना, सिर्फ ये दिन है। ऐजन, यौम आजादी, यौम आखरत। अब यार है ना, यौम के साथ आ रहा है आजादी, आखरत, ऐजन, वो वाला दिन, वो वाला टाइम। ठीक है। अल नईम, नेमत। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं इसके अक्सर काम की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलब ने। ठीक है ना। अब ये तकासुर ज्यादती थी, तो इसमें जो होता है ना, वो कह रहा है कि तुम्हें गाफिल रखा किसने, माल की ज्यादा तलबी ने। आ जाए जरा इसकी तरफ आप। अल हाकिम लहू से है, जिसके मायने, अल हाकिम में से ना मैंने आपको बोला था कि आप अगर अलिफ भी हटा दें और काफ और मीम भी हटा दें तो क्या बचा, ला, का, और ये इसके सॉरी रूट वर्ड आ रहे हैं, लाम, हा और वाव, और ये तलील से जहां तक पहुंचा है, तलील शुदा वर्ड है ये, इसलिए ये लहू जिसके मैनी है गफलत के हैं। लेकिन अरबी जुबान में ये लफ्ज ऐसे शुगल के लिए बोला जाता है जिससे आदमी की दिलचस्पी इतनी बढ़ जाए कि वो इसमें मनहक होकर दूसरी अहम चीजों से गाफिल हो जाए। लाइक दे देखें, इसके जहन में सिर्फ पैसा है, डॉलर है, वो इसके पीछे भाग रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अपने आप को, लाहू कर रहा है ना, इसमें से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो गफलत में है ये इस टाइम। तो ये देखो, वो कह भी रहे हैं कि अल हाकिम लहू से है जिसके मैंने गफलत किया, कि मतलब इसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस पैसा पैसा पैसा, वो इसके पाछे भाग भाग रहा है। तो इसलिए कहते हैं अल हाकिम अत्तका से, कि ये गफलत में पड़ गया हुआ। ठीक है। वो खुद को समझ रहा होगा कि मैं गफलत में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो पैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनफैक्ट वो गफलत में है कि ज्यादा पैसा भी आजमाइश है और कम पैसा भी आजमाइश है। किसी को दे के आजमाता है लमिया और किसी से लेके आजमाता है। अल्तकासे, कंपटीशन। ठीक है ना, वेइंग। तकासुर को होता है कंपटीशन, माल जमा करने में एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए, और माल और दौलत की कसरत पर फख्र भी करना फिर। दौलत इंसान के पास चाहे जितनी भी हो, उसकी तबीयत इससे भरती नहीं, और वो बददस्तूर मजीद हासिल करने की तगदो में लगा रहता है। ये तो एक तकासुर के मायने हो गए। लेकिन अब आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि ये अगर पैसे इतने बुरे हैं, मनी के, मालो दौलत की इतनी बुरी है, तो फिर हम करें क्या, हमारा दुनिया में गुजारा कैसे हो, है हम रहें कैसे। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें अल्लाह ताला ने ना बहुत आप लोगों को रास्ते बता दिए हैं। कैसे, जिनके पास बहुत पैसा है उन लोगों को कहा गया आप सदका खैरात करें, ज़कात दें अपने माल की। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप अपने इर्द गिर्द का ध्यान रखें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसके पास पैसा आ जाता है ना, वो अपने से जो, इवन बहन भाइयों की बात कर लेते हैं कि एक भाई के पास या एक बहन के पास ज्यादा पैसा आ गया, वो दूसरों को समझेगी, उसके अपने ही घर में एक ही माँ बाप के औलाद होती है, लेकिन वो दूसरों को ये समझते हैं कि ये मुझसे फोन कर रहे हैं, मुझे बात कर रहे हैं, तो शायद मेरे पैसों पे नजर है इसकी। तो वो क्या करते हैं,
क्योंकि एक दूसरे से जो है ना फासले बना लेते हैं कि ना हम इनसे मिलेंगे, ना ये हमारे पैसों पे नजर रखेगी, ना ये रोक टोक करेगी। तो ये फिर ये हम लोग करते हैं। अल्लाह ताला ने ये चीजें मना फरमा रहे हैं ना कि मालो दौलत की आप लोगों को अहमियत का पता होना चाहिए कि अगर अल्लाह आपको दे रहा है, क्यों दे रहा है, और अगर आपको नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा। जैसे एक छोटा सा वाक्य है कि मतलब ऐसे ही रवायत के तौर पे ही है, अब इसकी अथेंटिसिटी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात दिल को लगती है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ना एक फरिश्ते को इंसान बना के ना दुनिया में भेजा कि तुमने दो बंदों के पास जाना है, और एक बंदा जो है ना उसको कहना है कि तुम शुक्र ना करो अल्लाह, और एक बंदा जो है ना उसे कहो कि शुक्र करो। बस ये दो मैसेज लेके जाने हैं, और फिर क्या तुम्हें आगे से इसका रिएक्शन मिलता है वो बताना है। बहरहाल वो बंदा जाता है बहुत रिच आदमी के पास। उसके पास इतना पैसा है कि वो मतलब उसके दिल में ना कोई हसरत नहीं है क्या मुझे कुछ और चाहिए। तो उसने जाके बंदे ने उसको बोला कि तुम फिर भी शुक्र कर रहे हो, तो शुक्र अदा करना बंद कर दो ना। क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको कहा था ना कि जाके एक बंदे से कहना कि तुम शुक्र ना करो। तो उसने कहा कि मैं कैसे शुक्र अदा करना बंद कर दूं, मुझे अल्लाह ने कौन सी नेमत नहीं दी। मुझे दुनिया जहान की नेमतें दी हैं अल्लाह ने, और मैं बांट भी रहा हूँ, खत्म नहीं हो रही। तो मैं फिर अल्लाह का शुक्र अदा कैसे ना करूं। तो वो वहां से उस दूसरे आदमी के पास जाता है जो बहुत गरीब होता है, झोंपड़े में बैठा है, खाने के पैसे नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है। उसको कहता है तुम शुक्र करो अल्लाह ताला। वो कहता मैं किस चीज का शुक्र अदा करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना कपड़े, ना दौलत, ना पैसा, ना माल, ना बच्चे, कुछ भी नहीं, ना मेरा घर है, मैं एक झोंपड़ी में रह रहा हूँ, और तुम कह रहे हो को इसमें शुक्र अदा करो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो शुक्र अदा करता है ना वो बहुत सारा पैसा उसके पास होता है। तो चूंकि वो उसकी आजमाइश है, लेकिन वो आजमाइश पे पूरा उतर है और वो शुक्र अदा करे तो अल्लाह उसको और दे रहा है, अल्लाह उसको और दे रहा है। और जो दूसरा है उसको क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको जो उसको हेल्थ मिली है वो कम से कम एक झोंपड़ी में तो बैठा है, कम से कम उसको एक टाइम का खाना तो कहीं ना कहीं से मिल ही रहा है ना। तो उस पे ही शुक्र अदा कर रही, उन सांसों का ही शुक्र अदा कर। लेकिन वो उतने ही नाशुक्रे होते हैं, वो उतने ही ज्यादा गाफिल होते हैं। तो अल्लाह ताला फिर जो अल्लाह ताला को पसंद है आप कि आप कोई भी आप देख लें, अल्लाह ताला के बनाए हुए इंसान है हम सब लोग। आप कहते हैं अपने किसी बच्चे को, किसी बहन को, किसी बेटी को कि मुझे एक गिलास पानी का पिला दो, जब वो देखे आपको दे तो आप उसको फौरन शुक्रिया बोलते हैं, जजाकल्ला, थैंक यू। ठीक है ना। तो एक छोटा सा जस्चर है जो पानी मिलाया, तो अल्लाह ताला तो ने तो हमें पैदा करके दुनिया में भेज दिया, हर तरह की आसाइशें दी। ठीक है, लेवल वो नहीं है जो हमारी सोच सोच का है। इंसान तो कभी खुश रहता ही नहीं है ना, वो हदीस मुबारक है ना कि अगर मोमन को एक सोने की कान मिले तो वो कहेगा मेरे पास दूसरी भी आ जाए, दूसरी मिले तो वो कहेगा तीसरी भी आ जाए। यानी कि लालच तो हमारे अंदर घुस के बैठ गया, हम शुक्र नहीं करते उस चीज का। तो जिसकी जो है ना, ये जब मेड्स आती हैं हम लोगों के घरों में, तो वो उनसे पूछो कैसी जा रही है जिंदगी, बस बाजी गुजारा ही हो रहा, महंगाई बड़ी है आजकल, बस बाजी की करिए, पैसे ही पूरे नहीं होंगे। मतलब अगर मैंने तो सिर्फ पूछा उससे, अगर वो आखिर में बोल दे कि शुक्र है बाजी, बस अल्लाह इज्जत रख रहा है जो भी है, तो अल्लाह इस बात से ये चीज अल्लाह मांगता है। अब आप उन आजमा के देख लें, कोई भी मेड आ रही होगी, आप सिर्फ उससे पूछ रहे हो कैसे जा रही हो आज, तो वो आपको, और इतना ही कोई आपको बहुत मालो दौलत वाला कोई रिच बंदा मिलेगा, आप कहीं ना कहीं अगर वो इंसान का बच्चा होगा तो उसके दिल में जरूर वो इस चीज पर करेगा कि नहीं नहीं अल्लाह ने बहुत दे दिया, फजल है अल्लाह ताला का, बड़ा करम है अल्लाह ताला। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, हम अपनी जिंदगी में अगर ऐड कर लें तो हमारे लिए बहुत बहुत आसानी हो जाए इसके लिए। तो यहाँ ये सूरत भी यही, इसने पहली आयत पे ही आप लोगों को पता चल गया कि हम अल हाकुम तकासुर क्या कर रहे हैं हम लोग भी। तो ये आ रहा है ना, गफलत के हैं, डिस्ट्रक्शन हो रही है, हमारी दिलचस्पी कहाँ किन चीजों में, इन चीजों में ज्यादा है, और हमें माल जमा करने की और कंपटीशन में लगे हुए हैं। फिर हम उसके पास इतना है, मेरे पास कम क्यों है, उसने मारिया भी पहना है तो मैं भी मारिया भी पहनती हूँ, मैं गुल अहमद क्यों पहनूं, है। और हम लोग आपस में ही कंपटीशन में लगे होते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये भी हम खवातीन के पास और क्या होता है,
ब्रांड होते हैं ना दिखाने के लिए, कपड़े होते हैं। और चलो ब्रांड नहीं पहनेंगे, किसी और जगह से जाकर कपड़ा लाएंगे, हाँ बड़ा अच्छा सूट पहना, बकायदा कपड़ा पकड़ के उसको देखेंगी कि नहीं इसकी फील कैसी है।